हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अध्येता सर। वेलकम यू ऑल। खुशामदीद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लस पे। आई एम बैक विद टू कंटिन्यू द स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक। बट बिफोर starting the story, I want to recall some important events from the story. The main events are when Evelyn was 8 years old, her mother came to know that she had lost her hearing capacity, hearing power. At the age of 11, she was discovered her hearing disability at school. So this was the first time when her disability came in public. She wanted to make her career in music, but it was a eighth wonder for her teachers, and her teachers didn't support her, didn't encourage her. Rather, they all discouraged her. But there was one teacher, Ron Forbes, who, who discovered her potential and helped her by all means to achieve her goal. He trained Evelyn he trained Evelyn to sense the music through different parts of body. And soon, very soon, Evelyn got excited to feel the vibrations to every part of her body. Evelyn followed him like an obedient student, and in the meantime, she had learned to open her body and mind to vibrations and the sound and the sounds. After this, she never looked back. She joined Royal Academy of Music in London, and worked very hard with strong determination. And she reached the peak of her career. Now, what happened in this story, we will see, we will know. So, let's start the story. At the end of 3-year course, she had captured most of the top awards. So after finishing her 3 years course, she had almost bagged every award at that academy. जब उसका 3 साल का कोर्स पूरा हुआ तो उसने लगभग सारे प्रेसियस अवार्ड उसने बैग कर लिए थे, उसने हासिल कर लिए थे. And after all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. Now, after getting so many awards, and she had got each and every most precious award. She never show it. कभी उसने जाहिर नहीं किया. She didn't show, she didn't give any hint of heroic achievement कि it's a big achievement. उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया एवर्लिन ने कि यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है. जितने सारे उसने अवार्ड्स लिए उसको नॉर्मली उसने कंसीडर किया. कभी खुद को उसने पेश नहीं किया, कभी प्राइड शो नहीं किया कि हाँ मैंने इतने बड़े बड़े अवार्ड्स लिए हैं. और वो नॉर्मली उसने सारे अवार्ड्स को एक्सेप्ट किया. और वो कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट देयर, यू विल रिच देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And वह जो है एकदम टॉप पे, शिखर पे पहुंच गए, और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले मल्टी परकशनिस्ट में उसका नाम था सबसे टॉप पे. और वह ऐसी मल्टी परकशनिस्ट थी जिसने वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट
वो बजाना जानती थी, प्ले करना जानती थी, और उसका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही बिजी था। नाउ कम टू द 7th पैराग्राफ। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. It is intriguing, it is very interesting. यह बहुत ही दिलचस्प थी एवलिन को वॉच करना, उसे देखना कि वो जैसे जिस तरह से वो एफर्टलेसली जो है वो सुनती थी, बातों को वो सुनती थी, इसके बावजूद कि शी वॉज ए डेफ, वो एक बहरी होने के बावजूद वो विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, वो सारी बातों को समझ रही थी, और यह देखना बहुत ही दिलचस्प है। और आगे कहते हैं, राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया था, और उसने एक रिमार्क्स दिया और कहा कि मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति ने मुझे बहुत परेशान किया। एंड शी लाफ्ड, और उसको हंसने लगी। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। और आगे कहते हैं ऑथर कि वह सिर्फ लिप्स को रीड नहीं करती थी, वॉच नहीं, ऑब्जर्व नहीं करती थी, वो पूरे फेस को ऑब्जर्व करती थी, रीड करती थी, और स्पेशली वो आइज़ के मूवमेंट को, आइज़ को रीड करती थी, और फिर वो समझ जाती थी कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। और वह स्कॉटिश लैंग्वेज के इम्पैक्ट के साथ, आप जानते हो कि हर कोई जब कोई भी इंग्लिश हो, अगर इंग्लिश कन्नड़ वाले बोलेंगे या बंगाली बोलेंगे, बिहारी बोलेंगे, तो सबकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज की, लोकल बोली की जो है कि डायलेक्ट जो होती है, डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट, उसके जो है ना इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहता है। तो उस स्कॉटिश डायलेक्ट का जो इम्पैक्ट था उसके साथ वो बोल रहे थे। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल One minute. My speech is clear because I could hear till I was 11, she said. And she says, जब उससे पूछा गया, जब ऑथर ने पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, इतनी क्लैरिटी के साथ क्लियर कैसे बोल लेती हो, तो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि वो इसलिए इतना क्लियर बोल पाती है क्योंकि वह जन्म से बहरी नहीं, शी वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ। वह 11 ईयर्स तक, 11 साल की उम्र तक वह अच्छे से बोल पाती थी और सुन पाती थी, और यही वजह थी कि वो सारे शब्दों को बोलना तो जानती थी, सारे लेटर को प्रोनाउंस करना जानती थी, इसलिए वो क्लियरली बोल पाती है डेफ होने के बावजूद। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। कहते हैं लेकिन यह काफ़ी नहीं था, यह जवाब काफ़ी नहीं था इस बात को समझने के लिए कि वह इस वजह से क्लियर बोल पा रही है। ठीक है, अब वो अपनी मदर टंग तो बोल पा रही है क्लियरली, क्योंकि उसके सारे लेटर्स वो जानती थी, 11 साल की उम्र तक उसने सीखा था उसे। लेकिन जापानीज लेटर तो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, फ्रेंच अलग होते हैं, उनके लेटर्स तो डिफरेंट होते हैं, उनके साउंड भी डिफरेंट होते हैं। तो ये आसान नहीं था, और यह जवाब काफ़ी नहीं था इसे साबित करने के लिए कि वो 11 साल तक सुन सकती थी, इसलिए यह बोल पा रही है क्लियरली। ये जाहिर है यहाँ पे कि शी हैज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ तो था उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और वो फ्रेंच को भी, फ्रेंच लैंग्वेज भी उसने सीखा, और उसने बेसिक जापानीज भी उसने सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और आगे कहती है कि जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है कि यह मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ये बहता है, रन करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई एयर। और यह क्या टिंगल्स, चिल, टिंगल्स मीन्स चिल, शिवर। और यह क्या है, ये जो म्यूज़िक है वो उसके स्किन के थ्रू,
चिक बोन्स के थ्रू एंड इवन हेयर्स के थ्रू जो है कि वो चिल करते हैं, शीवर करते हैं, एंटर करते हैं. व्हेन शी plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers tips. और वो कहती है कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, तो वो महसूस कर सकती है, शी कैन सेंस वो साउंड जाइलोफोन से प्रोड्यूस हुए, पैदा हुए साउंड को वो महसूस कर सकती है. कैसे? जब वो जाइलोफोन से साउंड प्रोड्यूस होता है तो स्टिक के थ्रू उसके फिंगर प्रिंट से होते हुए उसके बॉडी पार्ट में जाता है, उसके सेंस तक पहुंचता है. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और बाय लर्निंग अगेंस्ट द, जब उसने ड्रम को सीखना शुरू किया तो उसने क्या पाया, उसने महसूस कर सकती थी उसके जो रेसोनेंस मीन्स कंपन. तो उसके जो कंपन थे उसके बॉडी में फ्लो कर रहे थे, वो उसे महसूस करती थी जब उसने सीखा था ड्रम को बजाना, प्ले करना. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट the vibrations, 1 minute, let me clean, show that the vibrations pass through her bare feet and up her legs flawlessly without a fault or mistake. और जब वो वुडन स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे होती, किसी भी वुडन स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे, तो वो अपने शूज को रिमूव कर देती. किस लिए रिमूव कर देती? ताकि जो साउंड से वाइब्रेशन पैदा हो उस वुडन प्लेटफॉर्म पे, वो उसे बेयर फीट, नंगे पांव जो होते हैं, उसके थ्रू वो महसूस कर सके और वो साउंड उसके लेग में पहुंच सके फ्लॉलेसली विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक. और वो जो साउंड है वो बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी मिसिंग नोट के वो पहुंचते थे उस तक. Let me clean it. Okay, now it's clear. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. Or without any surprise, it was not a surprise when Evelyn delights her audiences. वो खुश कर देती, और यह सरप्राइजिंग नहीं था जब वो अपने ऑडियंस को अपने म्यूज़िक से आनंदित कर देती थी, खुश कर देती थी, आनंद विभोर कर देती थी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और in the year of 1991, she was awarded with the Soloist of the Year award. And the award was given by Royal फिलहारमोनिक सोसाइटीज़. और यह 1991 में उसे एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया. और यह अवार्ड रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ के द्वारा दिया गया था और यह उनका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड था. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. एक परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, जो कि मास्टर हैं, लेजेंड हैं. उन्होंने रिमार्क्स दिया इवलिन के बारे में और कहा कि ईश्वर ने ज़रूर जो है कि उसकी हियरिंग छीन ली है, लेकिन इसके बदले में उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिया है, उसमें विलक्षण प्रतिभा उसे दे दी है ईश्वर ने. वॉट वी हियर शी फील्स. और क्या थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़? वो ये थी कि जनरल पीपल व्हाट दे हियर शी कैन फील इट. जो आम इंसान, एक आम आदमी, या जो हम लोग सुनते हैं उसे महसूस करती, और वो जो महसूस करती हमसे कहीं ज़्यादा गहरे तौर पे महसूस करती, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हम में से किसी से ज़्यादा वो उन साउंड को, उस म्यूजिक को महसूस करती. That is why she expresses music so beautifully, and this is the reason that make her so extraordinary
एंड शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही वजह थी कि म्यूजिक को एक उसने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से पेश किया, प्रदर्शित करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic, and now she accepts that she is like a workaholic. She is like a workaholic. वो एक ऐसे है जो काम करने में ही सिर्फ विश्वास करती है। वर्कोलिक मीन्स वन हु बिलीव्स ओनली इन वर्क, हार्ड वर्क। और कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कहती है कि मैंने अभी जस्ट अपना काम पूरा किया है, काम पे आई हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और वो कहती है कि उसने जो काम किया है वो क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा हार्ड था, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। और जो उसके बदले में उसे रिवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले, उपहार मिले, वो अनगिनत थे, इनॉर्मस थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा रेगुलर कंसर्ट तो वो करती थी जिसके बदले में वो उसे रकम पैसे मिलते थे, लेकिन इसके अलावा उसने सोशल कॉज में भी कंसर्ट करती थी, और वो प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में करती थी। और यह एक सोशल हेल्पिंग थी और फ्री में करती थी, क्योंकि उसके लिए वो कोई भी पैसा रिटर्न में नहीं लेती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह उसने अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन लोगों की दी जो यंग म्यूजिशियन थे, उसको उनमें ज़्यादा तवज्जो दी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, उसे प्रायोरिटी में रखते थे। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन बिथोवन फंड है एक, जिसके एन रिचलिन है, वो कहते हैं कि चिल्ड्रन से शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रन के लिए, डेफ बच्चों के लिए। यानी कि शी इज़ अ सोर्स ऑफ, ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गेट, और वे बच्चे कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मुकाम नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जहाँ पे पहुँचा ना जा सके। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने अपने जीवन में इतना कुछ पा लिया था जितनी लोग अपने मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपने जीवन से दोगुना उसने पा लिया था। जितने लोग अपने एक जीवन में नहीं पा पाते, उससे उसने डबल पा लिया था। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने जो उसकी जो और अचीवमेंट थी, एंड व्हाट वाज हर अचीवमेंट, शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में परकशन को फ्रंट प्लेस पे ले आया था। पहले क्या था, ऑर्केस्ट्रा में परकशन को बैक स्टेज पे उसे प्ले किया जाता था, लेकिन उसकी बदौलत उसने परकशन को एक रेस्पेक्टेड मकाम पे ले आया था। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह भी डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शन किया कि ये भी मूव कर सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। और उसने एक प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दिया उन सारे लोगों के लिए जो हैंडीकैप थे, जो फिजिकली डिसेबल थे। और पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग भी उससे देखते हैं तो कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर वह कर सकती है, देन आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और यही नहीं, इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, इतना ही नहीं था, उन्होंने मिलियंस पीपल के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी। मिलियंस ऑफ पीपल के लिए उसने एक इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी थी, खुशियाँ लाई थी, आनंद लाई थी। दिस वॉज रिटन बाय डेब्रा कॉली। सो दिस चैप्टर इज ओवर। तो हमने देखा कि किस तरह से ये दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, एंड इट इंस्पायर्स अस, एंड इट ऑल्सो
says us that nothing is impossible in the world if you are motivated, if you are hardworking, and if you determined to achieve your goal. There is nothing impossible. And as Napoleon Bonaparte once said, that there is no word like impossible in his dictionary, and she has proved it in her life. Thank you so much for watching the video.